Pass. Thank you. Shri Manish Tewari ji. Now please Suresh ji. Speaker from the party is now on his left to speak, please. अब बैठ मनीष जी को सुनिए, ध्यान से सुनिए जरा. He is your leader. Please. Okay, okay. Okay. Please Manish Tewari ji. Not this. सुरेश जी हो गया, enough. Mr. Chairperson. जी. Sir. Okay. No. Now please, Mr. No, please. Now please. Let. आप कृपया सुनिएगा ना. No, Mr. Okay. No. चल, तिवारी, मनीष जी. Mr. Chairperson, my honorable colleague, Mr. Kodikunal Suresh, made a very correct request that the finance bill can always be taken up for consideration tomorrow. But if the treasury benches are so insistent that we must take it up here and now, it obviously then becomes incumbent upon the opposition to articulate its point of view. And that is why I am on my feet. Mr. Chairperson, sir, the Finance Bill 2024 has two very explicit objectives. One, to continue the existing rates of income tax for the year 24-25. And number two, to give effect to certain financial proposals extending tax benefits to startups, sovereign wealth funds, pension funds, IFC units. Obviously, the fine print of this would be best examined by a tax lawyer. However, I would like to use this occasion to raise certain broader conceptual questions which are connected with the aggregation, collection, and the spending of revenue, as also the outcomes of that spending. Mr. Chairperson, sir, in the year 2019-2020, the total revenue receipts were 18,50,101 crores. The net revenue receipts to the centre was 15,04,587 crores. The fiscal deficit was 7,66,846 crores. In the year 2021, the financial year 2021, the revenue receipts fell to 15,55,153 crores, while the deficit went up to 18,48,655 crores. Now, this is completely understandable because that was when COVID-19 had impacted the whole world. But what is really worrying, Mr. Chairperson, is that since the financial year 2021, the fiscal deficit has been hovering in the range of 17 to 18 lakh crores. And Mr. Chairperson, sir, contrary to what the finance minister, who unfortunately has left us, this is not going to... Please continue. Mr. Chairperson, sir, if the House could be in order. No, it is already not. No disorder is there. Some members are leaving the House. Okay. So, Mr. Chairperson, sir, I was submitting that since the year 2021, the fiscal deficit has been hovering in the range of 17 to 18 lakh crores. Now, the question is, does this crowd in private investment or does it crowd out private investment? And the answer is very clear. When government is going to borrow between 17 to 18 lakh crores every year,
the access of the private sector to market finance therefore gets restricted. And that is why your investment to GDP ratio is today hovering at only 29.20%. This is further reflected, Mr. Chairperson, when you study the budget documents for the year 24-25 and you break it down by the rupee. Borrowings and other liabilities account for 28 paisa out of every rupee. That is the single biggest inflow into the government's kitties. And interest payments account for 20 paisa out of every rupee. And this is the largest outgo from the budget. तो ये बड़ी ही विचित्र और अद्भुत परिस्थिति है कि जो आप कर्जा लेते हैं वो आपके बजट के हर रुपए का सबसे बड़ा हिस्सा है और उसके ऊपर जो आप ब्याज देते हैं वो आपके बजट का सबसे बड़ा हिस्सा है। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या भारत की अर्थव्यवस्था के लिए ये कोई अच्छी परिस्थिति है। अब आप वित्त मंत्री ने बहुत विस्तार से कर्जे की बात की थी। लेट मी एक्सप्लेन, मिस्टर चेयरपर्सन सर, in 2014 the size of the Indian economy was $2.05 trillion and the total debt of the government of India was 55,87,149.33 crores. In the year 2024, India is a $3.75 trillion economy. But the debt has trebled. In 10 years, the debt has gone up 3 times, and today it is 168 crores, 72 lakhs, 554.16 crores. So obviously, the growth of the economy, इस अर्थव्यवस्था का जो वृद्धि दर है, वो जो आप राजस्व इकट्ठा कर रहे हैं, उससे नहीं हो रहा है। इस अर्थव्यवस्था का जो वृद्धि है, वो जो आप कर्जा ले रहे हैं, उससे हो रहा है। आपकी अर्थव्यवस्था 10 साल में 1.5 गुना बढ़ी, पर जितना आपने कर्जा लिया, वो 3 गुना बढ़ा। ये क्या अर्थव्यवस्था के लिए कोई अच्छे संकेत हैं? इसके ऊपर बहुत गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। मैं वित्त मंत्री जी की बात बहुत ध्यान से सुन रहा था when she was replying to the IMF related question with regard to debt GDP ratios. Mr. Chairperson sir, on the 22nd of December 2023, 22 December 2023 को, the Ministry of Finance put out a press release after mandatory Article 4 consultations with the International Monetary Fund. It said that the reason why debt to GDP ratios as a percent have got skewed is because of something called the taper tantrum, COVID-19, Russia-Ukraine war, global financial crisis. अब ये पता नहीं कहाँ से आया कि 10 साल में कौन सा ऐसा बड़ा वित्तीय संकट आया है। जहाँ तक मेरी जानकारी है वो तो वित्तीय संकट 2008 में आया था। पर उस प्रेस विज्ञप्ति में एक बहुत अद्भुत चार्ट है और वो ये कहता है कि भारत का जो डेट टू जीडीपी रेशियो है बाय परसेंट वो 81% है, पर चीन का 77% है, दक्षिण अफ्रीका का 71.1% है, जर्मनी का 66.1% है। अब इन 3 देशों में 2 देश जो ब्रिक्स कहा जाता है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, उसके हिस्सा हैं। और अगर आप ब्राजील को भी संज्ञान में लें तो इन सारे चुनौतियों के बावजूद जो ब्राजील का डेट टू जीडीपी रेशो बाय परसेंट है वो 84.8% से 85.3% बढ़ा, जबकि हमारा 2018 से लेकर 2023 तक 70 से लेकर 81% पर चला गया। तो क्या सरकार ने
ऐसा कोई मूल्यांकन किया है कि ये जो बाकी मुल्क हैं, कुछ विकसित मुल्क हैं, कुछ डेवलपिंग कंट्रीज हैं, अधिकतर ब्रिक्स के मुल्क हैं, कि इन्होंने अपना डेट टू जीडीपी रेशियो एज अ परसेंट क्यों बेहतर और हमसे बेहतर किस तरह से मैनेज किया है? क्या सरकार ने इसके ऊपर कोई मूल्यांकन किया है जो सरकार इस सदन को बता सके? अब मैं आता हूं कॉर्पोरेट टैक्स रेट के ऊपर। सितंबर 2019 में जब वित्त मंत्री जी अपना बजट लेके आई तो कॉर्पोरेट इनकम टैक्स को उन्होंने 30% से घटाकर 25.17% कर दिया। अगर आप कोई और रियायत ना ले तो इफेक्टिव कॉर्पोरेट टैक्स रेट 22% होता है। इसके कारण भारत सरकार को 1,45,000 करोड़ का घाटा हुआ और अगले वित्तीय वर्ष को अगर आप संज्ञान में लें तो जो पूंजीपतियों को कर में रियायत दी गई, टैक्स एग्जम्पशंस दी गई, उसका पूरी जो मात्रा है वो 1,03,285.54 करोड़ होती है। पर सरकार के अपने बजट के अनुसार सरकार का ये कहना है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जो खर्चा हम करते हैं कैपिटल एसेट्स बनाने पे, वो 2020-21 में 6.57 करोड़ था, जो बढ़कर 14.97 करोड़ हो गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर सरकार का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसके कारण अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, तो ये जो पूंजीपतियों को इतनी रियायतें दी गई थी, इसको अर्थव्यवस्था को बढ़ाने ऊपर पे कितना असर पड़ा है? ये एक बहुत गंभीर प्रश्न है कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ ऑल दीज टैक्स कंसेशंस which have been extended to the corporates if the entire growth, according to government statistics, is being fueled by the capital expenditure being incurred by the government. अब आप टैक्स बेस पे आ जाइए। ये एक आम धारणा है कि अगर आपने टैक्स बेस बढ़ाना हो तो जो कर का दर है उसको कम करना चाहिए। The tax rate should be lowered in order to broaden the tax base. अब वर्ष 2019-20 और वर्ष 2020-21 के बीच जो इनकम टैक्स पेइज थे उनकी मात्रा 47% गिरी। किस लिए? क्योंकि जो आपने एग्जम्पशन लिमिट बढ़ाई 5 लाख की, उसके कारण 47% कम लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल की। अब जो एक्चुअल टैक्स पेयर्स हैं विज़ावी जीरो फाइलर्स, वर्ष 2021-22 में 2.3 करोड़ लोगों ने आपके एक्चुअल टैक्स पे किया और 4.3 करोड़ लोग ऐसे थे जो जीरो फाइलर्स थे, जिन्होंने रिटर्न तो फाइल की पर कोई कर नहीं दिया। 3% जो टैक्स पेयर्स हैं जो कर देते हैं, उससे 48% आपका डायरेक्ट रेवेन्यू इकट्ठा होता है। सो इज दिस अ सस्टेनेबल सिचुएशन दैट योर टैक्स बेस इज सो नैरो दैट अल्टीमेटली you have 2.3 or 2.5 crore taxpayers, and out of them also a very minuscule percentage, 3%, 4%, actually account for half your tax collection. Is that a sustainable situation for the economy? I think the finance minister, when she replies, must answer this. अब मैं जो आपकी इनकम इनइक्वालिटी, जो आपके इनकम में असमानता है, उसके ऊपर चर्चा करना चाहता हूं। जो इस देश के 1% लोग हैं, जो 1% पूंजीपति है, उसके पास 40.5% इस देश की राशि है। इस देश का जो धन है वो 40.5% सिर्फ 1% लोगों के पास है, और जो 50% लोग हैं, जिसको बॉटम 50% कहते हैं, उनके पास सिर्फ इस देश का 3% धन है। जितने बिलियनियर्स थे
करोड़पति के भी करोड़पति, वो 2020 में जब कोविड शुरू हुआ 102 थे, 2022 में जब तक कोविड खत्म हुआ तो वो बढ़ के 166 हो गए। पूरे दुनिया में तो तबाही हो गई, पर भारत में जो पूंजीपति थे उनका जो नंबर था वो 102 से 166 हो गया। आपके जो 10 सबसे अमीर लोग हैं इस देश में, उनका कलेक्टिव वेल्थ सभापति महोदय 27.52 लाख करोड़ है, ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू 3/4 ऑफ द बजट ऑफ इंडिया। और हमारा ये कहना है कि 271 मिलियन लोग, मतलब 27 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको 2004 से लेकर 2014 तक हम गरीबी रेखा से ऊपर लेके आए। वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण के 10वें अध्याय में ये कहा है कि 2014 से लेकर 24 तक 25 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनको गरीबी रेखा से हम ऊपर लेके आए। तो अगर ये सारे आंकड़े सही हैं, फिर ऐसा कैसे है कि अभी भी 28 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं? ये कहीं पे इन आंकड़ों में एक का असमानता है जो समझ नहीं आती। और बड़े आश्चर्यचकित बात यह है सभापति महोदय कि 50% जो इस देश की जनसंख्या है, जिसको बॉटम हाफ कहते हैं, द बॉटम 50%, वो 6 गुना जो इनडायरेक्ट टैक्स है, जो जीएसटी है, जो आपके टूथपेस्ट पे लगता है, साबुन पे लगता है, तेल पे लगता है, आपके नमक के ऊपर लगता है, 6 गुना वो जीएसटी ज्यादा देते हैं एज कंपेयर टू द टॉप 10% ऑफ द पॉपुलेशन। तो जो कर दे रहे हैं वो लोग हैं जो बॉटम 50% है, और जो अमीर हो रहे हैं वो लोग हैं जो ऊपर का 1% है। तो कहीं पे जो आपकी बेसिक टैक्सेशन फिलॉसफी है, जो आपका कर लगाने का जो विचारात्मक दृष्टिकोण है, उसमें कहीं ना कहीं इतना विरोधाभास है कि आपके टैक्सेशन पॉलिसी से अमीर तो अमीर होता जा रहा है, वो करोड़पति का और करोड़पति बनता जा रहा है, और जो गरीब है वो और गरीब होता जा रहा है। अब मैं आखिरी, आप मुझे मालूम है कि आप बड़े ध्यान से मेरी ओर देख रहे हैं, मैं 2 आखिरी बात कह के जो जरूरी है जो जरूरी है, नहीं क्योंकि समय का भी समय का भी तकाजा रखना चाहिए, मैं 2 चीजें कहना चाहूंगा। देखिए, वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण के अध्याय 6 में यह कहा कि 80 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनको हम मुफ्त राशन दे रहे हैं। हमको इससे कोई आपत्ति नहीं, we have absolutely no difficulty with this. We had brought the National Food Security Act. हम तो चाहते हैं कि आप 140 करोड़ लोगों को फ्री राशन दीजिए, देयर शुड बी यूनिवर्सल कवरेज ऑफ फ्री राशन। पर उसके साथ साथ रोजगार का क्या हो, और मैं आपको कुछ आंकड़े देना चाहता हूं। वर्ष 2013-14 में जो मनरेगा का बजट था वो 32,992.83 करोड़ था। 2023-24 में वो बढ़ के 86,000 करोड़ हो गया, जिसको सरकार ये कहती थी कि ये गड्ढे खोद के गड्ढे भरने वाली स्कीम है, 10 साल में उसके ऊपर जो सरकार का आउटले है वो 250% बढ़ गया। और वर्ष 2014-15 में 16,572.1 लाख परसेंटेज क्रिएट हुए थे। 2022-23 में ये बढ़कर 29,564.15 लाख परसेंटेज हो गए, मतलब ऑलमोस्ट दुगना हो गया। और इसका ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि अर्थव्यवस्था में रोजगार के साधन पैदा नहीं हो रहे, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति मिनिमम वेज पे काम करने के लिए तैयार है, क्योंकि मनरेगा तो
तो बिल्कुल मिनिमम वेज है जो हर स्टेट में हर प्रदेश में दी जाती है। अगर उसके ऊपर काम करने के लिए तैयार है तो सभापति महोदय, इसका मतलब ये है कि अर्थव्यवस्था में रोजगार के साधन पिछले 10 वर्ष में पैदा नहीं हुए। आखिरी बात मैं ये कहूंगा, आपके FRBM जो फिस्कल बजट रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट है उसके संदर्भ, देखिए जो केंद्र सरकार है उसका वर्ष 2024-25 में जो क्यूमुलेटिव डेट है वो 56% है। अगर आप सारे राज्य सरकारों को भी जोड़ लीजिए तो उसका क्यूमुलेटिव डेट 29.5% है। FRBM एक्ट का ये मैंडेट है 2024-25 तक कि केंद्र का डेट 40% से कम होना चाहिए और राज्य सरकारों का कलेक्टिव डेट 20% से कम होना चाहिए। तो क्या सरकार ये बताने की कृपालता करेगी कि ये जो FRBM टारगेट्स हैं, जो IMF वार्निंग दे रहा है वर्ष के सिनारियों को लेकर, जिसका जिक्र वित्त मंत्री ने किया, कि ये जो FRBM टारगेट्स हैं ये सरकार कब तक पूरा करेगी? जो फिस्कल प्रूडेंस है, फिस्कल कंजर्वेटिज्म है, जिसके तहत आप अपने घर का हिसाब किताब भी बैलेंस करते हैं कि आपका खर्चा आपकी आमदन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। When will we be able to generate a surplus budget, and why is it that in the previous 10 years we have not been able to generate a surplus budget? And I would close with a quote that thrift is essential for a well-ordered living. मैं सरकार को ये कहना चाहूंगा कि 10 साल में भारत के सर के ऊपर जो कर्जा है उसको 55,000 करोड़ से आप 168,000 करोड़ के ऊपर ले गए। ये भारत की अर्थव्यवस्था के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। आपने भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर, जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ डाला है। आपने बहुत धैर्य से मुझे सुना सभापति महोदय, पता नहीं बाकियों कितनों ने सुना होगा क्योंकि समय बहुत हो गया है, पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कुछ अनाउंसमेंट ऑनरेबल, कुछ आप करना चाहते हैं अनाउंसमेंट? सम ऑनरेबल मिनिस्टर। Sir, dinner has been arranged for the members in the MP dining, first floor, Parliament House. Members may kindly avail the dinner after 8 p.m. today as per the convenience. ठीक है। श्री सुभाष बहेरिया जी, जी प्लीज।